Hello everyone, a very good morning to all of you. So we are starting with the analysis video for 31st of October. So firstly, we see कि Supreme Court puts the Maharashtra Speaker, the Assembly Speaker, on deadline over the defection pleas. So इसके अराउंड जो इशू है बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ भी हमारे पास, तो डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जितना मतलब पावर्स जो है वो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के पास रहती हैं। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर फाइनल डिसीजन आएगा। सो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन सेट करी है, क्योंकि ये इशू बेसिकली रिलेटेड टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो स्टेट असेंबली के स्पीकर के ऊपर ये डेडलाइन इम्पोज की गई है। सो हेयरइन this is the name of the case which is mentioned here. Three judge bench, it was led by Justice RF Nariman. उन्होंने बोला कि speakers they should decide disqualification petitions within a maximum 3 months unless कोई exceptional circumstances ना हो. So even right now अगर हम बात करें constitutional provisions की, तो constitution exact time period specify नहीं करता है. And as far as anti-defection law is concerned, so 10th schedule, it is related to that. And herein basically against the right now incumbent chief minister, ये जो केस है जो इवन पार्टी स्प्लिट देखी गई थी उसके अराउंड दिस केस इज रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पे मैं दो चीजें ऐड करता हूँ. When the speaker deals the anti-defection matters against the legislators, whether it is the state assembly or the union parliament, so he sits as a tribunal, so he possesses the quasi-judicial powers to sue and to summon the legislator, particularly in this case. And इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस किस के पास पावर है. So under the 10th schedule anti-defection, we have the powers to speaker. Then disqualification powers we have to the president on 4 grounds. And then third kind of disqualification grounds comes under the RPA 1951. So तीन तरीके से हमारे यहाँ disqualification of the legislators होता है. और सबसे बड़ी इसमें ये चीज़ है कि अगर we do not have a timeline for the speaker to decide, so we should the Supreme Court, rather than saying, Supreme Court should pressurize the parliament and the state legislatures to have a proper provision of proper timeline within which the speaker needs to give his decision on the defection. So we can categorize this to be a case of judicial activism also. And यहाँ पे एक और अगर हम केस की बात करें which is regarding कर्नाटका, तो कर्नाटका's MLA's disqualification case 2019 में 3 judge bench जो थी, their judgment was basically कि speaker who cannot stay aloof from the pressures and wishes of his political parties does not deserve to occupy his chair. So this was this thing around, मतलब वही है कि डिले कर I रहे हो. think इससे हम जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं बोलना चाहिए हमें. The reason because obviously a plea would have been filed under the Supreme Court regarding this, and second, these kinds of matters comes under the I think original jurisdiction of the Supreme Court, so we can't actually say कि they are activists. इंटरप्रिटेशन, हाँ ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है. ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू वेरी, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. आप जुडिशियल एक्टिविज्म को किस के पर्टिकुलर केस को बोल सकते हो. तो अगर बेसिकली किसी चीज के ऊपर, क्योंकि टाइम पीरियड के ऊपर एक एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप की टाइम पीरियड फिक्स किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी आई वुड टेक इट एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म. Got your point. ओके देन यहाँ पे अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स अवॉर्डेड ₹766 करोड़ इन सिंगूर केस. सो हेयरइन मेजर विक्ट्री रही है फॉर टाटा मोटर्स इन दिस फाइट अगेंस्ट वेस्ट बंगाल फॉर कैंसलिंग देयर नैनो स्मॉल कार प्रोजेक्ट which forced the company to relocate this project to Gujarat. And for this basically this amount has been awarded to Tata Motors. So herein if we go by basically the background या reasons क्या रहे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दिए, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, they basically issued this order. And this was under various as like जो factors के अगर हम बात करें, kind of loss of capital investment जो टाटा मोटर्स ने वेस्ट बंगाल प्लांट में करी थी. Then with regard to automobile manufacturing facility in West Bengal जो सिंगूर में located थी. And
Mansi, I have a question यहाँ पे हाँ that in the earlier times, when we see like the case of Tata, which was not allowed to operate its factory and industrial development in the state of West Bengal, but today when we are focusing on PLI schemes, special economic zones, what were the major reasons? You know, the technical economical reasons because of which we are seeing this change today when the industrialists are operating really good without having any clashes with the state governments and with the people also. ओके, तो आप पूछ रहे हो कि ये जो PLI और DLI स्कीम्स हैं इनके पीछे मोटिव क्या है, ये अभी क्यों हमने इंट्रोड्यूस करी, राइट? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे कि पहले के टाइम पे इतनी जो प्रॉब्लम्स आती थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ, थे मतलब उनको अपना। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं हम उसमें, क्योंकि अगेन हर स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल करी थी वो डिफरेंट थी। तो इट वाज समवेयर बिटवीन ऑपोजिशन पार्टीज वर्सेस जो पार्टी इन पावर थी एट द यूनियन लेवल। तो एनी लाइसेंसिंग एंड कोटा सिस्टम नहीं, हैव बीन लाइसेंसिंग शेड नहीं, बाय। कोटा नहीं बोल सकते हम, बट उसके अराउंड स्पेसिफिकली वी कैन से कि अगेन वहां पे भी हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया, ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हो फॉर द लाइसेंस। तो उसमें अगेन जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उसकी वजह से थोड़ी डिस्ट्रप्शंस हम बोल सकते हैं, और उसके अलावा अगेन इट वाज डेवलपमेंट और जो इंटरेस्ट थे ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज इन डिफरेंट लोकेशंस, तो उनकी तरफ से भी कुछ प्रोटेस्ट रहते थे। सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से भी कुछ हम चैलेंजेस बोल सकते हैं फॉर दी corporates. And as far as PLI schemes is concerned, तो major objective clearly उसके पीछे जो है that is to boost indigenous manufacturing. So that's there. तो बेसिकली छठ पूजा की अगर हम बात करें तो अगेन मास सेलिब्रेशन की जाती है, तो यहाँ पे अगेन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कल भी हमने बात करी थी क्राउड मैनेजमेंट के अराउंड, सो this is already been covered up. We talked about even traffic management due to again celebrations of festivals across different states. So वहाँ पे we talked about again CCTV cameras या drone की technology की help की वजह से we can get to know कि pattern of mass flow किस डायरेक्शन में हो रहा है। उसके अराउंड हमने ये भी बात करी थी पार्किंग की, अगर हम बात करते हैं तो टैक्सी फैसिलिटीज ही सिर्फ अवेलेबल रहेंगी, तो वो जो लिमिटेशन ऑफ स्पेस रहता है फॉर द पार्किंग फैसिलिटीज उसको हम डील करने में ये चीजें हेल्प कर सकती हैं। Mansi, we can take this fire outbreak in Bangalore. So herein we see fourth major fire in less than a month in the city, as at least 18 buses belonging to various private bus companies, they were completely destroyed. And this mass place that broke out in a bus workshop. So again यहाँ पे even जब हम बात करते हैं यहाँ पे specifically बस वर्कशॉप की बात की जा रही है, बट क्राउडेड मार्केट्स में भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फायर इंसिडेंट्स देखे जाते हैं, तो फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन, प्रॉपर मॉक ड्रिल्स होना, पीरियोडिकली एक प्लान ऑफ एक्शन होना, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर्स वो सब होना, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटीज होना, जितनी कैपेसिटी है उतने ही स्टूडेंट्स या बस उतने उसी चीज लिमिटेशन पर ढेर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अगर आप और कुछ ऐड करोगे तो कविश यू कैन जस्ट गो अहेड। श्योर मानसी, तो इसमें आपने अच्छे पॉइंट बताए, लेकिन इसी के साथ साथ जो अगर हम रिपोर्ट देखते हैं स्पेशली of 2020 when there was a fire outbreak in the hotel based on Karol Bagh, Delhi. So उसके बाद under the that matter reached to the court and finally few of the important incidents came. Number one, जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस जो है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में लिया नहीं जाता है फ्रॉम द फायर अथॉरिटीज। तो एक उसको हम उसका ऑनलाइन मैकेनिज्म अंडर दी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उससे लेने के लिए हम
फोकस कर सकते हैं कि वहां से हम फायर क्लियरेंस लें। दूसरा, जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स या फिर जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, उनको प्रॉपर फायर डील करने की ट्रेनिंग दी जाए, मिड टर्म कोर्सेज हो। और दूसरा कि मॉक ड्रिल्स कराई जाए हर इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो और चीजें हो। और दूसरा ये कि टाइमली जो है इंस्पेक्शन हो बाय द फायर अथॉरिटीज एंड बाय द लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, ताकि उनका जो 1 ईयर का टारगेट होता है, 1 ईयर का लाइसेंसिंग होती है, अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी उसको रिन्यू कराने का प्रोसेस दोबारा से चलाया जा सके। तो एक अवार्ड एंड पनिशमेंट का मैकेनिज्म भी हम इसमें कर सकते हैं। और एक और चीज की दिल्ली में भी जो इलीगल फैक्ट्रीज फंक्शन कर रही होती है वहां पे भी हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, मेजर आउटब्रेक देखा गया है। तो मेजर जो पीछे इसकी रीजन रहता है वो ये रहता है शॉर्ट सर्किट की वजह से वो इतना ज्यादा एस्केलेट हो जाता है। तो इवन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द वायर्स दैट आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट्स, तो वहां पे भी वी कैन हैव अ चेक। Yes, and Mansi, along with that, the last point I would like to raise is that insurance policy. It is also connected with the insurance policy, because what is seen as per the reports that जब हमारे ड्यूज बढ़ जाते हैं, जो फैक्ट्रीज ओनर्स होते हैं, या फिर जब उन्होंने बैंक से लोन लिया होता है और जब उसको पे नहीं कर पाते हैं, या फिर जब वो उनको पता लग जाता है कि इंस्पेक्शन करने लोग आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो वो जानबूझकर भी जो है फायर इंसिडेंट क्रिएट करवा देते हैं अपनी फैक्ट्रीज के अंदर। और बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी कि हमारा हमने इंश्योरेंस किया हुआ है और हमें एटलीस्ट 70 to 75% पैसा वापस मिल जाएगा, तो हम रिनोवेट भी कर सकते हैं। सो एक इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कनेक्शन है उसके ऊपर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। प्रवेश, आपने अच्छा एक औशिक, आपको कुछ हाईलाइट करना है यहाँ पे? नहीं, ये सब चीज दे दीजिए मतलब इसमें। आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है औशिक, नॉट क्लियरली ऑडिबल। हेलो, बहुत लो वॉल्यूम है। ठीक है, मैं चेक करूँ। So researchers identified new mushroom species from Western Ghats. So name of the species, this is the scientific name. Yes, you are now clearly audible. ठीक है। हाँ, तो Okay. पिछले वाले में प्रवेश ने उठाया जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि कोई कभी कभी इंश्योरेंस के वजह से वो फायर मतलब कर देते, शॉर्ट कर देते। तो आई थिंक एवरी अदर पॉइंट्स हैज बीन टेकन अप। फायर ऑडिटिंग तो ले लिया उन्होंने, तो ठीक। So we're talking about new mushroom species in Western Ghats. So herein, it basically, अगर हम characteristics की बात करें, तो that's how it looks. It has basically a honey yellow cap, which is found in the campus of Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute, which is located in Thiruvananthapuram, Kerala. So प्रवेश, हाँ there. आई वांट टू आस्क वन So क्वेश्चन कि मशरूम को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? मशरूम का इम्पोर्टेंस क्या, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, शॉर्ट में अगर बताना। तो बेसिकली मशरूम जो होता है वो पोटाशियम का बहुत एनरिच सोर्स होता है, तो इसको हम डाइट में यूज करते हैं। और मतलब हाँ, थोड़ा बहुत मेडिसिन सेक्टर में भी यूज आता है। तो ये 2 एरियाज मुझे पता है। So we talk about the देखिए okay, ठीक है, आप कंप्लीट कर लो पहले। देखिए मेडिसिन और जो डाइट है वो तो है ही कि उसमें बहुत सारे प्रोटीन सही मात्रा में होते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं, तो उस फायदा होता है बॉडी के लिए। इसके अलावा आप बात कर सकते हो कि ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक होता है, इनके अंदर में सेलुलोज पाया जाता है, उसको प्लास्टिक की बायोप्लास्टिक ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर आप मशरूम को भी आप यूज कर सकते हो विद यूज एंटीऑक्सीडेंट के लिए। मशरूम को यूज कर सकते हो एक तरह से फायर प्रोपेलेंट के लिए। मशरूम को यूज कर सकते हो आप जो घर में मच्छर ऐसे आता है ना, उसको भगाने के लिए। मतलब हर एक चीज के लिए आप यूज कर सकते हो मशरूम। मशरूम सिर्फ खाने के लिए नहीं होता है, वो एक तरह से पेन रिलीफ करने के लिए भी होता है, हर एक काम के लिए होता है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज होता है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो एक टाइप का स्पीसीज जो मानसी बता रही है, मानसी बोलिए आप। ठीक है। सो जब हम इवन वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो दीज आर अगेन दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड स्पीशीज जीनस का नेम हम वी कैन बस मेमोराइज कर सकते हैं यहाँ पे, कैंडुलोमाइसिस, दैट्स देयर। एंड जो ये स्पीशीज है वर्ल्ड वाइड, अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो सिर्फ 35 स्पीशीज प्रेजेंट है वर्ल्ड वाइड। सो वी कैन से कि जो ये पर्टिकुलर हमें मिला है दिस कैन बी एंडेमिक टू इंडिया एज वेल। एंड हाइट की बात करें तो हाइट अराउंड 58 मिलीमीटर्स। तो ये भी अगेन एक आइडिया होना चाहिए हमें कि कितनी हाइट रह सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।
तो ये सब टॉपिक्स दे आर ऑल रिपीटेड, आई डोंट थिंक इसमें से भी कोई लेना चाहिए। सो स्टेबलाइजेशन ऑफ यूएस चाइना टाइज कितना इम्पोर्टेंट है? सो फर्स्टली लाइक you can answer कि क्यों ये important है till the time I look for the key details in this article. Okay, I will add some points. Rest प्रवेश can add later. तो पहला है कि यूएस और चाइना they belong to the major economic bloc. Both of them have GDP more than $16 trillion, which says that their importance in the global power, their economic power status and trade. तो अगर उनके बीच में अगर प्रॉब्लम होगा तो उससे जो टैरिफ मेजर्स होगा वर्ल्ड वाइड उस पर इम्पैक्ट करेगा, इसमें इंडिया भी आएगा इसमें, और ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के बीच में डिफरेंसेस वो बढ़ेगा। एंड साथ ही साथ जो उनका जो कोऑर्डिनेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूएनएससी रिफॉर्म या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सच एज डब्ल्यूटीओ हो गया, एनएसजी हो गया, वो हैम्पर करेगा। तो आई थिंक यूएस और चाइना के बीच में रिलेशनशिप बढ़ना चाहिए, और इसमें रोल एक इंडिया का रहेगा, क्योंकि इंडिया is a part of both global south as well as the democratic sentiment of the global north. अब कैसे किया जा सकता है? तो थ्रू यूसेज ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सच एज यूएनएससी, यूएनजीए और डब्ल्यूटीओ, जहाँ पर जो रूल बेस्ड ऑर्डर का बात किया जाए, और साथ ही साथ जो कंसर्न है, इंपॉर्टेंट कंसर्न रिगार्डिंग द वर्ल्ड, जैसे पॉपुलेशन, कोविड, और फिर आफ्टर पोस्ट कोविड पैंडेमिक, या फिर देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब पे एक तरह से सहमति किया जा सकता है। तो आई थिंक मेरे तरफ से इतना ही। प्रवेश, यू कैन ऐड कि क्यों इम्पोर्टेंट है स्टेबलाइजेशन यूएस एंड चाइना। हेलो हाँ उशित। प्रवेश, आप ऐड करिए इस पर कि आप क्या सोचते हो उसके बाद। यूएस चाइना से रिलेशनशिप के ऊपर आप क्या कमेंट करते हो, या फिर कैसा होना चाहिए, या क्यों उन लोग का स्टेबलाइजेशन होना चाहिए इस पर। बेसिकली दोनों जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर मेंबर्स हैं। तो स्टेबलाइजेशन यूएस और चाइना का जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर यूएस की कोई नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करने की पॉलिसी है, तो अगर उसमें चाइना अपना वीटो लगाता है, मना करता है, तो उसको यूएस को उससे यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम होंगे, और वाइस वर्सा चाइना के साथ हो सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि दोनों इकोनॉमिक पावर हैं, राइजिंग पावर एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और चाइना तो डेवलप्ड नहीं है, लेकिन चाइना का जो डायस्पोरा है, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, हम स्किल्स की बात करें, हम लेबर की बात करें, तो चाइना यूएस के अंदर उसका काफी डोमिनेंस है, जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं। तो चाइना का जो डायस्पोरा है यूएस में, वो भी कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के जो रिलेशन है उनको स्टेबलाइजेशन करने में एक अपना अहम योगदान निभाता है। तो ये 2 पॉइंट मैं भी बोल सकता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे ओके add मानसी, यू कैन टेक तो अप। हाँ, 3 मेजर एरियाज हैं जहाँ पे यूएसए और चाइना का कॉपरेशन या स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर टाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट तो हो गया उनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जो है हम देख रहे हैं ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से ग्लोबली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन में भी स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप में कॉपरेशन होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशनशिप अगर हम दोनों कंट्रीज की बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड, तो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं दोनों साइड से, यूएसए से भी, यूएसए ने भी जो टैरिफ्स इम्पोज किए हुए हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बेसिकली, जो हम एग्जैक्ट टर्म यूज करेंगे, यूएसए वांट्स टू डीकपल फ्रॉम चाइना, मतलब जो हम बात करते हैं ओवर डिपेंडेंस अपॉन चाइना, नॉट जस्ट यूएसए की। सो उस पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक ट्राइज एंड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सेकेंड एरिया जो रहेगा कि जो रिलेशनशिप होनी चाहिए, इट शुड बी बेस्ड अपॉन फेयर कॉम्पिटिटिव मेजर्स। सिक्योरिटी के भी अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें, और वो कहीं ना कहीं ट्रेड से भी रिलेटेड है, इंपोर्ट ऑफ दी टेक्नोलॉजिकल गुड्स फ्रॉम चाइना, सो वहां पे भी सिक्योरिटी का एक कंसर्न आ जाता है, जो इसी वजह से उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी अगर वहां पे स्टेबिलिटी सिक्योरिटी रहेगी,
जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, तो वो सिर्फ ना यूएसए और चाइना बट ओवरऑल ग्लोबली भी इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एंड एक और इंसिडेंट हुआ था स्पाई बलून का, जो अगेन चाइना यूएसए के बीच में था। तो ऐसे इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि डेफिनेटली रिलेशंस दे आर नॉट स्टेबल एज ऑफ नाउ। एंड अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो जियोपॉलिटिकल या ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं जियोपॉलिटी या स्ट्रैटेजी के टर्म्स में, ये थर्ड एरिया हो जाएगा जहाँ पे स्टेबिलिटी लाना इम्पोर्टेंट है। सो ये 3 एरियाज हैं। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या है, चाइना का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या वो सोचता है यूएसए के बारे में। सो चाइना का पहले तो ये मानना है कि यूएसए उनके लिए एक मिलिट्री पावर है, एंड उसको वो थोड़ा हम बोल सकते हैं कि वहां पे चाइना अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो एक यहाँ पे इस एरिया में फाइट हो रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चाइना ये भी चाहता है कि एज वी आर सीइंग इट इज एक्सपैंडिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं इट वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी, या जो हम बोल सकते हैं कि इट इज कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। सो दिस इज देयर। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन, एंड वहां पे भी वी आर सीइंग के डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हम सेटअप कर रहे हैं। तो चाइना को क्लियर आइडिया है कि इट इज एंटी चाइना, चाहे आप क्वाड की बात करो, एंड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आसियान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स देयर। एंड चाइना की असर्टिवनेस की हम ऑलरेडी बात करते ही रहते हैं। सो दीज आर सर्टेन एरियाज। तो 3 ब्रॉडर एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एंड हाउ बेसिकली टाइज आर सो फार, वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ले चुके हैं। So this is there, which this article it is basically मानसी, about. Yes. I want to ask one question to you, Okay. that US has bases all around the world, right from South China Sea to in the Taiwan, in South Korea, in Japan, etc. So it is very basically natural for China to think that USA is anti-China, because all around its own geographical boundary, USA has a strategic partner or its bases. Hmm. तो ये नहीं दिख रहा है कि यूएस ज्यादा हेजेमनी की तरफ जा रहा है रादर देन कि चाइना। आपका क्या इसमें कमेंट है? I won't say कि यूएसए हेजेमनी की तरफ जा रहा है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, वी कैन से कि यूएस और चाइना जो है 2 ग्लोबल पावर्स हैं। तो एज वी टॉक्ड अबाउट बाइपोलर वर्ल्ड, तो इन अ वे इफ चाइना की जो असर्टिवनेस वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि चाइना भी इक्वली अपनी मिलिट्री प्रेजेंस या जो बेसिस की आप बात कर रहे हो इंडो पैसिफिक रीजन में, या बात करो कि पैसिफिक ओशन वाले रीजन में जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो चाइना इज आल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स असर्टिवनेस, एंड वी कांट लेट दैट हैपन। तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? नॉट जस्ट यूएसए बट इवन इंडिया इज आल्सो एस्टैब्लिशिंग इट्स बेसिस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट अगेन वो एक बैलेंस मेंटेन हो सके। एंड चाइना जो चाहता है वो ना हो, यूनिलेटरली चाहता है वो ना। समथिंग है। जो ओशिक का क्वेश्चन है, तो बेसिकली आई वुड लाइक टू गिव द आंसर ऑफ दैट. I completely agree with the Oshik stance that USA has played its hegemonic role since the ancient times and has established its security and diplomatic base across the world. प्रवेश एंशिएंट टाइम में थे नहीं यूएस, आप बोल सकते हैं 19th सेंचुरी। Yeah, I mean, in 92 that I'm talking about. Yeah. So basically the intention was that, not the word. Yeah. So what the China is doing, China is not criticizing the US as such that why you are doing this. China is doing the similar kind of thing on a different formula, and that is becoming a problem for the US because the US policy is to have the hegemony, but as well as to establish the democratization in in its basis. But China is having the hegemony on the basis of economic interdependence to its basis. अगर हम बात करें श्रीलंका की, पाकिस्तान की, so US also supported Pakistan, but the time US was supporting Pakistan, it was just to um, to serve its strategic interest. But China is doing the similar kind of thing with different formula to establish Pakistan to fulfill its national as well as international interest. So I think the formula is different of both the countries, but the program of both the countries are same. ठीक है, And China is not criticizing US. US always criticize China. The reason being US hegemony is getting diminished amid the rising power of the China. I think we have taken both the points of Mansi and Pravesh. We can move forward. बस ये एक मानसी आप ले लेना।
क्वेश्चन बोले। करना है हाँ प्रवेश से कि प्रवेश ने बोला कि यूएसए का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था इन सर्विंग पाकिस्तान, तो आई वांट टू नो क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था। टू फ्यूल टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया। नहीं, इसको एक आप दूसरा लाइन बोल सकते, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। मतलब ये था कि जैसे यूएस का हमेशा पॉलिसी रहा है, टू बकेट थ्योरी रहा है, कि अगर एक बकेट को आप पूरा सपोर्ट करोगे डॉलर्स के साथ, दूसरा बकेट को आप आर्म करोगे। तो इंडिया जब पूरा यूएसएसआर के ग्रुप में कैंप में था, पहले जब 1971 में साइन हुआ था स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप विद यूएसएसआर, इंदिरा गांधी के समय में, उस समय से लेकर पहले यूएस का इंटेंशन था कि पाकिस्तान को खड़ा करे, ताकि इंडिया को जो एक स्ट्रैटेजिक लाइवरली देखा जाता है थ्रू ब्रिटिश लेंस, वो कम किया जाए। इसलिए यूएस और पाकिस्तान वॉज बेसिकली अ नॉन नेटो अलाई, तो सीएटो बोलते हैं बेसिकली। तो सीएटो का पार्ट था इराक, पाकिस्तान एक्सेप्ट। तो And उसका एक, obviously, the Soviet affiliation of India was also seen with suspicion by the United States. हाँ हाँ, इसलिए सब कोई, फ्रांस भी, ब्रिटेन भी, सब जो ये मानसी इसको ले सकते साइड वाला जो था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कमेंट कर सकते इस पर सर। कौन सा ये वाला? क्या हुआ ना बेसिक, हाँ ऊपर, ऊपर हुआ ऊपर है थोड़ा सा, राइट साइड वाला। हाँ राइट ओके से। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ऑनलाइन फिल्म फिल्म रिव्यूअर होते हैं ना, दे बेसिकली रिव्यू ऑल द फिल्म्स इन केरला। तो उन पर एक तरह से एफआईआर हुआ कि वो नेगेटिव रिव्यू देते हैं, फ्रीडम एक्सप्रेशन उनको गलत इस्तेमाल करते हैं। इस पर हुआ पूरा चर्चा, मतलब 2 दिन पहले हुआ था एक चीज। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपका जो क्रिटिसिज्म है वो एक तरह से हार्म तो नहीं कर रहा है सोसाइटी को, नहीं थी कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तब भी आजकल यूज किया जा रहा है सेडिशन, सेडिशन नहीं यूज किया, सेक्शन 195, 295 या 296 है एक्ट की। हाँ हाँ, 296 है ना प्रवेश? 296। हाँ हाँ, सही है। मतलब कि आप हेट्रेड फैला रहे हो बाकी सब कम्युनिटी के अगेंस्ट में, या फिर थ्रू फिल्म 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 रिव्यू। तो आई थिंक क्या वो जायज है? तो मेरे अनुसार कि नहीं होना चाहिए ऐसे। क्योंकि अगर जब ने हम लोग हमेशा बात करते हैं, मानसी और प्रवेश, जब भी कि फ्रीडम एक्सप्रेशन स्टैंड आउट करता है तभी जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं करोगे, इंटेंशन टू हर्ट एनीवन, हर्ट मतलब फिजिकली हर्ट नहीं करोगे, या फिर आप फॉर एग्जांपल जुडिशरी केस में आप मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए टू रिड्यूस द और रिस्पेक्ट ऑफ द जुडिशरी। तो ये सब तो नहीं हो रहा ना, लेकिन तब भी इन पर केस लगा। तो आई थिंक इसका इल यूज है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रीडम एक्सप्रेशन का। यहाँ पे इस पे नहीं, जो मेरा पावरफुल थोड़ा राइट तो सबसे थोड़ा एंटी है। मतलब हाँ मेरे हिसाब से ये मानना है कि जो पुलिस अथॉरिटीज और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो हर किसी के ऊपर इस तरीके के केसेस फाइल करेंगे। तो जब किसी तरीके के लोगों के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, सोसाइटी में डिसहार्मनी क्रिएट होती है, और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, तभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कदम उठाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है लोगों की, अ, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पेक्ट करता है, बशर्ते आप एडमिनिस्ट्रेशन को और जो सिविल सोसाइटी है उसके इंटरेस्ट के ऊपर अपने फ्रीडम एक्सप्रेशन जो उसको थोपे ना। तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपसे डिसएग्री करता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। एक और पर्सपेक्टिव जो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर सकती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ठीक है, फंडामेंटल राइट है। एंड जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट करे औषिक की, लॉ एंड ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए तब तक इट इज रीजनेबल एंड वो वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक जो काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन रिव्यूज परमिट किए जा रहे हैं एंड अगर उसके थ्रू सपोज कोई मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाती है तो वो जो इम्पैक्ट होता है वो हो जाता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो बेसिकली फिल्म में इतना ज्यादा पैसा लगता है, इतना ज्यादा हाई बजटेड मूवीज रहती है, उनकी सक्सेस के ऊपर वो इम्पैक्ट जरूर करता है। तो एक ये पॉइंट भी मतलब एज अ हाँ डायमेंशन। ठीक है, मैं इसमें ऐड करूंगा मानसी का पॉइंट एंड वही कि कौन आप डिसाइड करेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, मिस हम्म। इन्फॉर्मेशन वर्ड, और जो इंटेंट क्या है वो कौन डिसाइड करेगा? तो सिर्फ एक कमेटी बनना चाहिए, वो डिसाइड करेगा। तो ऑलरेडी कमेटी तो है ही, सीबीएफसी, कि जब फिल्म जब प्रमोट हो चुका है, या फिर कैसे डिसाइड होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है? मतलब वो एक हाँ। एरिया, ग्रे एरिया आ जाता है, हम्म। जिसको मतलब कभी भी यूज कर सकते हो। कोई भी फिल्म, फॉर एग्जांपल अभी फॉर केरला फाइल हुआ, या फिर आप उसका दूसरे तरफ ले लो, तो कुछ और ले लो एग्जाम्पल, जो लेफ्ट तरफ से या राइट तरफ से, दोनों फील्ड में। तो ऐसे तो फिर आप
एक तरह से फिल्म जो इंडस्ट्री का, उसको फिर आप फ्रीडम एक्सप्रेशन के तहत में आप उसको कम कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो। कौशिक, मुझे तो दो होना चीजें नहीं सुननी। चाहिए मुझे। पहला ये कि जो आपने बोला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम एग्री करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन आप अगर आप ऑनलाइन रिव्यू करते, मान लीजिए किसी फिल्म का रिव्यू करते हो आप, और उसके अंदर पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं, अफेक्ट होने के चांस भी हैं और डिटरमाइन होते हैं उससे, उस फिल्म से। ऑनलाइन रिव्यू से आप ये देखिए कि मतलब जो ऑनलाइन रिव्यू हो रहा है उससे तो फिर जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है कि मैं अपने हिसाब से अपना रिव्यू अपनी फिल्म को दूंगा, आप उसको भी जो है एब्रोगेट कर रहे हैं आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज करने के नाम पे। दूसरी चीज, आपने बोला कि कमेटी तो है, लेकिन चांसेस हैं कि मतलब मिस इन्फॉर्मेशन डिफाइन कौन करेगा। तो जब केस रजिस्टर होता है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आपको सीज कर, मतलब आपको बुक करता है, तो विद इन 24 आवर जो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने जब आप पेश होते हो, तो उसके अंदर एक प्रॉपर स्क्रूटिनाइज कमेटी का हमारे यहाँ प्रोविजन है अंडर द सीआरपीसी और सीपीसी, जिसमें कि एविडेंस एक्ट 1971 को देखकर, को बशर्ते रखकर, आपके ऊपर जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसकी 3 या 4 प्रोविजंस के अंडर आपको देखा जाता है कि आपने वो कंडीशन फुलफिल की है नहीं, otherwise you are released by the executive magistrate. So we ठीक have provisions. हम्म, और एक और ठीक है चीज व्हीकल। है कि अगर हाँ सपोज जो नेगेटिव रिव्यूज भी अगर सर्कुलेट हो रहे हैं, बट स्टिल अगर लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो इंटेंट बिहाइंड द मूवी है इट इज अ नोबल इंटेंट, तो स्टिल वो अपनी ऑडियंस फाइंड आउट कर सकती है और जो बैड रिव्यू सर्कुलेट हो रहे हैं उसको भी वो ओवरकम कर सकती है। सो हाँ हाँ, उसी बात कर रहा था। इट हम्म, डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। हाँ हाँ ऑडियंस ठीक है। वी हैव डिस्कस ऑल द, ये बात कर चुके थे कल 70 आवर्स वाला कल ही। easing the transport of cargo by railways। सो कल हमने बात करी थी कि फ्रीट में रेलवेज इज इन प्रॉफिट, कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें कंज्यूमर ट्रैवल, तो देयर इन रेलवेज में जो है लॉसेस वो सफर कर रहे हैं, तो कैसे रेवेन्यू इंक्रीज हो सकती है ये हम बात कर चुके हैं कल। सो देयर इज एन प्रवेश ने टू बात डेवलप किया था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेवल्स, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। ठीक है। immediate need to develop consumer user common user facilities at the cargo aggregation and dispersal points in mining clusters, industrial clusters में हो सकते हैं, large cities। so basically उसी को ये substantiate कर रहे हैं, उसी को complement कर रहे हैं जो major topic है। so knowledge of these clusters rest with the states। तो states और railway authorities के बीच में यहाँ collaboration important हो जाता है, क्योंकि जो again data dissemination है that would be going from states to these authorities। so accordingly plan हो सकता है, railway routes हम plan कर सकते हैं for this। एंड environmental concerns की अगर हम बात करें तो the Indian Railways must also look at the new commodities जैसे fly ash की अगर हम बात करें, तो Ministry of Environment Forest they've started issuing notifications also regarding this thing since 1999 so that जो fly ash है उसका complete utilization हो सके and it is like not causing much problems as far as the quality of air is concerned, or it does not become a pollutant। so full utilization we are ensuring, and Indian Railways never realized क्या potential है and it never approved many power plant sidings without fly ash loading facilities, rendering it to be a minor player in the transportation। and so proactively ये इस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है। अनदर नेसेसिटी जो है दैट इज टू एनकरेज एंड लिबरलाइज द डिजाइन ऑफ न्यू वैगन्स amenable to higher and efficient loading to deal with the new commodities। तो even what material like aluminium अगर हम यूज करेंगे तो जो स्पीड है, efficiency है of travel and fuel efficiency है, हम उसको भी improve कर पाएंगे। so these are certain important points। अगर आपको यहाँ पे और कुछ highlight करना है you can go ahead। so national नो logistics मानसी, वी mentioned। हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है। so expansion of settlements in the flood prone area। so इसकी वजह से भी we are seeing कि जो disasters हो रहे हैं उनका impact और ज्यादा हो रहा है। so recently there was a study led by World Bank जो publish की गई in the Nature। what does it says about flood risk in India? इसको मैं ले लेता हूँ मानसी, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा गया है वर्ल्ड बैंक एंड पब्लिश नेचर स्टडीज में कि कैसे मेनी ऑफ द सिटीज in flood risk in many of the cities rising because they are expanding into the flood prone areas। तो सिटीज का जो लिमिटेशन होना चाहिए कि कैसे वो फ्लड प्रोन रिवर बेड है वहां पे एक्सपैंड नहीं करे। एग्जाम्पल अगर इंडिया में लिया जाए तो वो केरला फ्लड हो गया। वहाँ कैसे ये केरला फ्लड से जो भी रिवर बेड था उस पर बना हुआ था, तो आई थिंक इंडिया yeah इज एट example रिस्क, वो दिया गया। यमुना हाँ, flood भी हो जाएगा अगर बैंगलोर फ्लड हो गया। हाँ दिल्ली हाँ में। ठीक है। बैंगलोर फ्लड जो देखा जाता है हर साल वो हो गया। पटना भी है, सोन नदी पुनपुन नदी के बीच में है बसा हुआ।
वो भी एक एग्जांपल है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, तो इसमें व्हाट इज टू बी डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट फोर्सेस पुश करता है फ्लड प्रोन एरियाज बनाने का, लेकिन वी हैव टू मेक स्टेप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। और सिटी नीड्स टू प्रॉपर साइंटिफिक मैपिंग। तो बेसिकली साइंटिफिक मैपिंग कैसे यूज कर सकते हैं, थ्रू इसरो और उनका जो रीसैट सैटेलाइट है उसके थ्रू इमेजिंग किया जा सकता है। और फिर मेकिंग हाउस इन फ्लड रेजिलिएंट एंड प्रोटेक्ट द लो इनकम हाउसिंग। तो जो रेट्रोफिटिंग ऑफ कंक्रीट हो गया, कंक्रीट रीइंफोर्समेंट हो गया, या फिर और भी टेक्नोलॉजी है, 3D हाउसेज हो गया कि आप एक जगह बनाओगे उसको रीअसेंबल करके दूसरी जगह बना सकते हो। हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, आप सुने होंगे न्यूज़पेपर में। तो वैसे टाइप आप बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउसेस। फिर मिशिंग एंड मिया कम्युनिटी अलोंग द ब्रह्मपुत्र, जिनके पास एक स्टिल्ट हाउसेस रहता है। तो बेसिकली 2 to 3 एरियाज है, साइंटिफिक मैपिंग चाहिए और री इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट या फ्लड रेजिलिएंट हाउसिंग चाहिए। एक पॉइंट में और ऐड अर्बनाइजेशन, हाँ करूंगी। हाँ हाँ, वो रहेगा टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं वो भी इस चीज को ही प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, तो एक वो एलिमेंट भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। और वी कैन थिंक अबाउट कि रीजन क्या है कि सेटलमेंट्स फ्लड प्रोन एरियाज में क्यों इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर। तो उसको अवॉइड करने के लिए एज वी आर सीइंग कि इवन प्रधानमंत्री जो हाउसिंग स्कीम है वहां पे भी जो हाउसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स ही क्रिएट की जा रही है, सो दैट अगेन वही पॉपुलेशन प्रेशर को डील करने के लिए। So that is already like happening also metropolitan cities में, जो हमारे high rise building projects they are being promoted and being taken forward. ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। साइड So साइड में प्रवेश आप ले लेना, CIC SIC, और वहां पर जो वैकेंसीज है ठीक है। उनका सो केस। वी हैव दिस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है हमारी रेफर आउट रह जाती हैं, और बिकॉज दे बिकम डिफंक्ट। एंड ये RTI एक्ट जो है हमारा 2005 वाला, उसके अंडर जो है ये हमारी एजेंसीज क्रिएट की गई थी अंडर द नेशनल एज वेल एज इन द स्टेट लेवल। सो इसमें इसमें हमें ये भी देखना है कि कितनी टीथ ऑफ पावर्स जो है इन दोनों एजेंसीज को जो हमारे यहाँ दी गई है, किस तरीके से RTI का यूज होता है, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है। अगर हमारे ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं होते हैं तो इसमें हम सबसे पहला क्या कर सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर की दोनों एजेंसी जो आती हैं, तो इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो अच्छे से पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाए। इनकी वैकेंसी के इश्यूज, इनने कितने केस डील्स किए, वो सारे लाइमलाइट में आ सकें, ताकि जो एक जनरल सोसाइटी है उसको इन एजेंसीज के बारे में पता लग सके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इवन डोंट नो दैट हाउ दे ऑपरेट, वेयर दे आर लोकेटेड। दूसरा इसमें ये कर सकते हैं कि इनकी एक जो डिजिटल वेबसाइट्स है उसका हम प्रमोशन कर सकते हैं, ताकि लोग बढ़ चढ़कर RTI का यूज करें। और ये दो स्टेप्स मैं भी सजेस्ट करूंगा जो हम कर सकते हैं। ओके मानसी, वी कैन टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। okay, yes, yes, time.